صرف MLA کی کرسی تک پہنچنا نہیں ہے. ہم لوگوں نے پہلے بھی الیکشن لڑے، 2002 میں بھی لڑے، 2008 میں بھی لڑے، 2014 میں بھی لڑا، 2020 میں بھی لڑا. 4 الیکشن اس سے پہلے میں یہاں اس ایریا سے لڑ چکا ہوں. آج یہ 5واں الیکشن ہے جو میں خود ذاتی الیکشن جو لڑ رہا ہوں. پارلیمنٹ کے الیکشن اور پنچایت کے مختلف ہیں. تو ان 2002 میں جب ہم نے الیکشن شروع کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ یہاں کے ہر ایک آدمی، پوری قوم نے، قوم کا مراد میرے سے ہندو مسلمان سب، ہر طبقہ کے لوگ جو ہیں، ہم لوگ درواڑی میں اکٹھے ہوئے تھے اور ایک فیصلہ لیا تھا کہ ہم نے گول ارناس سے الیکشن لڑنا ہے. اور اس وقت جس طرح سے ہر ساتھی اپنی اپنی پہنچ کے مطابق گول ارناس کے ہر کانسٹیچوئنسی میں پہنچا اور ہر ایک نے ایک ذمہ داری لی اور اس میں پھر کامیابی حاصل کی. اور اسی کامیابی کا نتیجہ رہا کہ آج تک اس کے نتیجتاً ہم جمہوریت کا وہ پھل جو ہے وہ حاصل کرتے رہے. اس وقت کے 2002 اور 2024 کے مطلوط میں اگر ہم فرق دیکھیں تو بہت ذرا بڑا فرق نظر آتا ہے. آج کا مطلوط اور 2002 کا مطلوط میرے خیال میں کہیں پر بھی وہ مقابلہ، کمپیریزن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. آج ہمارے پاس وہ تمام سہولتیں ہیں جو اس وقت نہیں تھی ہمارے پاس. کتنے ہی ہمارے لوگ امپلائمنٹ میں گئے، کتنے ہی ہمارے لوگوں نے یہاں سڑکیں بنی، کتنے ہی یہاں پر سکول کھلے، یہاں پر بجلی لگی، یہاں پر واٹر سپلائی سکیمز لگی، اور وہ تعمیر و ترقی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا. ہر ایک نے اس کا فائدہ اٹھایا. آج کسی وقت مطلوط بیچ میں ہوتا تھا اس گول ارناس کانسٹیچوئنسی کے. آج آپ لوگ دروازے ہو گول ارناس کانسٹیچوئنسی، یہ گلاب گڑھ کانسٹیچوئنسی کی جو نئی کانسٹیچوئنسی ہے، گلاب گڑھ کانسٹیچوئنسی، اس کے دروازے ہو. قسمت نے ایسا پھیر پھیرا کہ جب 2020 سے پہلے ہمارے پاس 3 کانسٹیچوئنسیاں تھیں ریاسی ڈسٹرکٹ کے اندر. ریاسی کانسٹیچوئنسی، گول ارناس کانسٹیچوئنسی اور گلاب گڑھ کانسٹیچوئنسی. بھارتیہ جنتا پارٹی کی سب سے بڑی ہمیں دین یہ رہی، اور نیشنل کانفرنس کی، دونوں تنظیموں کی، کیونکہ جب 370 کا فیصلہ کیا گیا اس وقت ڈی لمیٹیشن کمیشن ایک بنایا گیا، اور اس ڈی لمیٹیشن کمیشن نے یہ طے کرنا تھا کہ ہم نے جموں کشمیر کے اندر کس طرح سے اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیاں بنانی. اس ڈی لمیٹیشن کمشنر کے ممبر 5 لوگ تھے، جن میں 3 ممبر پارلیمنٹ نیشنل کانفرنس کے اور 2 ممبر پارلیمنٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کے تھے. ان 3 میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، حسنین مسعودی صاحب اور تیسرے محمد اکبر لون صاحب تھے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے جگل کشور جی اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ جی تھے. لیکن انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ وہ ناانصافی کی کہ ہماری اتنی بڑی جو کانسٹیچوئنسی تھی، جو چھوٹی کانسٹیچوئنسی تھی، اس کو اتنی بڑی وسیع کانسٹیچوئنسی بنا دیا گیا. اور جہاں ریاسی ضلع کے اندر 4 کانسٹیچوئنسیاں بننی تھی، وہاں 2.5 کانسٹیچوئنسی ایک طرح سے بنا دی، کیونکہ کٹرا کی کانسٹیچوئنسی کو میں آدھی کانسٹیچوئنسی مانتا ہوں. تو یہ انصاف بھارتیہ جنتا پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے لوگوں نے کیا. دوسرا سب سے بڑا انصاف کہ گول ارناس کانسٹیچوئنسی کا وجود ہی ختم کر دیا گیا. اس کا نام ہی مٹا دیا گیا کہ گول ارناس کانسٹیچوئنسی بھی کوئی ہے. ریاسی کانسٹیچوئنسی کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا کہ ریاسی کا ٹاؤن اور تھوڑا سا ارد گرد کا علاقہ ریاسی کانسٹیچوئنسی میں، باقی پاملہ ایک سائڈ، اور کھنڈی مال کہاں پر ہے وہاں سے لے کر وہاں تک MLA. اتنا بڑی وسیع کانسٹیچوئنسی ریاسی کانسٹیچوئنسی بنا دی گئی جو ساولا کوٹ تک جاتی ہے. ساولا کوٹ چلا دے، اور اتنا بڑا علاقہ اس کانسٹیچوئنسی میں بنا دیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں کا MLA
किस तरह से इंसाफ करेगा और उसको किस तरह से ढूंढा जाएगा कि वो कहाँ पर बैठेगा, कहाँ अपना दफ्तर खोलेगा। इसी तरह से कटरा की कॉन्स्टिट्यूंसी रियासी के दरवाजे से शुरू करके कटरा पर ख़त्म करके, जबकि कटरा का ज़्यादातर हिस्सा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर आता है, जिस पर कोई किसी भी लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल नहीं होता माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऊपर। तो ये इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। मैं एक बात इस स्टेज से ज़रूर उन लोगों को पूछूंगा जो मेंबर थे उसमें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके मेंबर थे, कि आपके जो यहाँ के लीडर थे, जो रियासी ज़िला के लीडर थे, क्या उन लोगों ने आप लोगों को ये फीडबैक दिया कि इस तरह की ये कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए? अगर इस तरह का फीडबैक हमारे इन लीडरों ने दिया यहाँ से, तो क्या वो इस चीज़ के हकदार हैं कि वो इलेक्शन में कभी हिस्सा भी ले सके? जब इतना तोड़ फोड़ 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों को 2.5 में तब्दील कर दिया और 2.5 कॉन्स्टिट्यूंसी को उसको भी इस तरह से तकसीम किया गया कि कुछ इलाकों की शनाख्त ही टोटल ख़त्म कर दी गई। पौनी इतनी बड़ी तहसील, उसका नाम ही कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं जिक्र नहीं। अरनास ठाकरा कोट का जिक्र ही नहीं कि वो भी किसी इलाके के अंदर हैं। ये गुलाबगढ़ का नाम पहले माहौर रखा था, ये भी लड़ाई लड़ के कुछ लोगों ने गुलाबगढ़ इसका नाम वापस रिस्टोर करवाया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग किसी भी नज़रिया के तहत तामीर और तरक्की नहीं करते, ये किसी भी नज़रिया के तहत इलाके को बदलने के लिए काम नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ देखते हैं कि हम फटाफट एमएलए किस तरह से बने, हम एमएलए की कुर्सी पर किस तरह से पहुँचे। इसीलिए आज तक ये लोग कभी कुर्सियों एमएलए की कुर्सियों तक पहुँच नहीं पाए, क्योंकि इनके पास कभी वो हक और इंसाफ की बात ही नहीं है। आज इसी रियासी ज़िला के अंदर मैं ये कहता हूँ, जहाँ पर लोगों के हक की बात की जाए, तो जब यहाँ पर लोगों के हकूक़ तलफ किए जाते थे, जब 370 के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर रियासत को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, तो कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उसको भी हमें सोचना चाहिए। कोई आवाज़ें यहाँ से बुलंद नहीं हुई, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से और ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लोगों के हकूक़, यहाँ पर ज़मीनों पर जो हमारे हक थे, चाहे वो स्टेट लैंड पे थे, चाहे फॉरेस्ट लैंड पर थे, चाहे हमारी मलकियत ज़मीन पर थे, या शामलात पर थे, या घास चराई पर हमारे हकूक़ थे, जब उन हकूक़ को ख़त्म किया जा रहा था, तो उस वक्त एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नाच रहे थे कि 370 के टूटने से हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं ये ज़रूर उनसे आज पूछना चाहूँगा कि वो एक फ़ायदा बता दें कि कौन सा फ़ायदा हमारे इन लोगों को उसका पहुँचा है, जिससे ये ज़मीन के हकूक़ जो ख़त्म हुए उसको, उससे क्या फ़ायदा आम आदमी को पहुँचा है। जहाँ पर हमारे लोग 1947 से पहले ज़मीनें अपनी काश्त करते थे, आज वो उन ज़मीनों से बेदखल हैं। जिन जंगलात, जिस आप रुमला या इसकी बात यहाँ पर कर रहे थे, ये फारूक कर रहा था, एक तरफ से कहा जाता है कि आप प्राइम मिनिस्टर PMAY का मकान बनाओ, दूसरी तरफ जिस ज़मीन में वो 40 साल या 50 साल से बस रहा है, उसको रोका जाता है कि तुम यहाँ PMAY का मकान नहीं बना सकते। तो फिर वो रविंद्र रैना जी का वो स्टेटमेंट, जहाँ पर वो कहते थे कि जित गुजर बकरवाल की बकरी लंगी हो तो उसमें मलकियत, यहाँ तो PMAY प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ मकान भी अगर गुजर जाए अभी तब मलकियत नहीं मिली, तो बकरी ने कहाँ से करनी है मलकियत। इस तरह के करनी और कथनी में फ़र्क कितना है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर ज़रूर देखनी है। और आज का इलेक्शन इन सब चीज़ों के लिए है। अगर हम अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गारी की बात करें, तो इन 10 वर्षों के अंदर हमारी माँओं बहनों को, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन पर इकट्ठे करके मन की बात तो बहुत सुनाई यहाँ से, लेकिन कभी उनके मन की बात नहीं सुनी कि वो लोग क्या चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक तरफ से सुनाई
उन्होंने दूसरी तरफ से लोगों की आवाज़ कभी सुनना गवारा नहीं समझा इस जम्मू कश्मीर के अंदर। लोगों की आवाज़ को सुनना गवारा नहीं समझा। अगर किसी भी स्कीम में ले लो जिसकी बड़े बड़ी यहाँ पर बात की जाती है, यहाँ कहा जाता है कि 108 एम्बुलेंस हम प्रोवाइड करते हैं आपको। मेरे भाई 108 एम्बुलेंस आप प्रोवाइड तो करते हो, लेकिन 108 एम्बुलेंस जम्मू पहुंचने के लिए 8 घंटे लगाती है। जम्मू और यहाँ मतलोद या गुलाबगढ़ के बीच में जो 10-12 घंटे का सफ़र है, वहाँ के आपके हॉस्पिटल की हालत क्या है। आप अरनास के हॉस्पिटल की हालत देखें, आप रियासी के हॉस्पिटल की हालत देखें, आप कटरा के हॉस्पिटल की हालत देखें। वो इस तरह के हॉस्पिटल वहाँ पर दिए गए हैं जहाँ पर आदमी का बचना, मैं नहीं समझता कि कोई बच सकता है वहाँ पर जाके। पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि वहाँ पर कोई हादसा शायद चिल्का के अंदर हो गया, कोई लड़का वहाँ पर गिरा था या क्या, टीचर था, उसको चोट लगी, उसको रियासी ज़िला हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट नहीं मिल सका टाइम का, और उसकी डेथ वहाँ पर हो गई। इस तरह कितने ही हादसे यहाँ पर हुए हैं। तो कौन से उस हेल्थ सिस्टम के 108 के होने या ना होने से क्या होगा। इसलिए इस तरह की स्कीमें जो दिल्ली से स्कीमें आई, लेकिन वो ग्राउंड पर लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाई ये सरकार। जो पिछले देश के अंदर करप्शन का इतना बोलबाला रहा कि किसी भी शोबे में देख लें, रिश्वतखोरी के बगैर, रिश्वत के बगैर एक कागज़ का पत्ता भी कहीं नहीं हिलता है। जहाँ पर आप सिंपल अपनी गिरदौरी की नकल लेने के लिए कभी जाते थे तो आसानी से मिल जाती थी, आज उसी नकल के लिए आपको 2500 रुपये तक खर्चना पड़ता है और चक्कर अलावा करने पड़ते हैं। तो इस तरह का निज़ाम भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया, इस तरह का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया। जहाँ पर कहते हैं हमने हर घर बिजली दे दी, भाई हमने मतलोद में 2012 में ही हर घर में बिजली दे दी थी, लेकिन जब हमने बिजली दी थी उस वक्त आपका महीने का किराया 170 रुपये आता था। आज जो बिजली दी गई है उसमें आपका किराया 1070 रुपये आता है। फ़र्क कितना है। एक गरीब आदमी ऐसे मेरे पास बिल लेके आते हैं जिनके 10,000 और 20,000 रुपया उन पर बिजली का किराया कर्ज चढ़ा हुआ है। क्या ऐसे लोग, उस हुकूमत के लोग जो गरीब को इस तरह से कर्जे के नीचे डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके वोट के हकदार हो सकते हैं कहीं पर? ऐसे लोग, यहाँ कहा जाता है कि PMAY का मकान हम देते हैं, 1.25 लाख रुपया PMAY के मकान के तहत दिया जाता है, जिसमें 25,000 आपको ऊपर से ही रिश्वत लग जाती है, वो पता ही नहीं लगता वो कहाँ पर पहुँचता है। 1 लाख में अगर वो गरीब आदमी मकान बनाना चाहे, उसको रेत के 2 डंपर नहीं मिलते यहाँ पर, तो वो कर्जदार हो जाता है। उसको उधार लेके उस मकान को मुकम्मल करना पड़ता है। अगर मुकम्मल ना करे तो रोज़ उसको नोटिस इशू हो जाते हैं कि तुमने मुकम्मल क्यों नहीं किया मकान। जहाँ 6,000 या 3,000 रुपये की आप बजरी का ट्रक लेते थे, आज वो बजरी का ट्रक आपको जो पहले मुफ्त मिलता था, क्योंकि आपके यहाँ पर कोई ऐसा माइनिंग का ठेकेदार नहीं होता था, आज उसकी क्या हालत है। इन सब चीज़ों को देखा जाए अगर, तो मैं नहीं समझता कि आप लोग बीजेपी के उन लोगों को कभी वो आपके वोट का कभी हकदार हो सकते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, वो एक तरफ आप नेशनल कॉन्फ्रेंस समझो या भारतीय जनता पार्टी समझो, वो हमेशा जुड़कर इलेक्शन लड़ते हैं। आपने हमेशा देखा, आपने 2008 में भी देखा, आपने 2014 में भी देखा, उनके झंडे एकदम बदलते हैं, जब मौसम बदलता है उसके साथ साथ उनके झंडे बदलते हैं। तो वो तो उनका ये पता ही नहीं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कभी कहते थे हम आपको ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे, हम आपको बड़ी बड़ी चीज़ें देंगे, हमने ऐसा मंशूर बनाया है, आज वैसा मंशूर बनाया है। आज हम वहाँ पर पहुँचे हैं कि आज हमारे पास रियासत भी नहीं है, आज हमारे पास यूनियन टेरिटरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हमेशा आप देखें, 1996 का दौर देखें, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना,
उस दौर में सबसे मुश्किल दौर में हमारे लोग रहे, चाहे वो मिलिटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे पानी वाटर सप्लाई स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे स्कूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो। मैं वो दिन आपको यहाँ पर जरूर याद करवाऊंगा कि हम लोग किस तरह एक NGO के पीछे चलते थे उसी दौर के अंदर कि हमें एक स्कूल का एक इदारा मिल जाए यहाँ पर खोलने के लिए। लेकिन जब दौर बदला 2002 का, तो वही जो NGO ने स्कूल खोले थे उन वहाँ पर बड़े बड़े मिडिल स्कूल भी आपके खोले, वहाँ पर बिल्डिंग भी बनी। जिस मतलोद में आपको कोई एक मेन सड़क के अलावा कोई सड़क नहीं थी, कितने किलोमीटर सड़क आज उसी मतलोद के अंदर आपके पास है। आज खड़ 18 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी मुझे लगता है आपकी ये मेन सड़क। ये कितने किलोमीटर है? मतलोद पट्टियाँ 24 किलोमीटर, बांधने वाले लगा के 24 किलोमीटर सड़क आपकी इस दौर के अंदर बने। और अब मुझे लगता है थोड़ा ही, जिस तरह यहाँ पर इसने फारूक ने कहा, एक वही सड़क जो है वो उसमें पेंडिंग रहती है, उसके अलावा तकरीबन ये वाले तंगसा वाले, उसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें आपकी हो गई हुई हैं। मैं ये कहना चाहूँगा हमें हमेशा अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, हमें पार्टी के निशानों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने जब खुद पर भरोसा किया तब हमें ताकत मिली और हमने हासिल किया जो हम हासिल करना चाहते थे। बाकी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप असली और नकली को पहचानना बहुत ज़रूरी है। असली कौन है और नकली कौन है, आपने इस बार साफ फैसला करना है कि 3 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवारों में से कौन हमारी सही नुमाइंदगी कर सकता है। ये उसमें कोई ज़्यादा बातें करने की नहीं है। मैं उसमें कहूँगा तीनों लोग आपने आजमाए हुए हैं, तीनों लोगों ने यहाँ पर काम किया है, पार्टियों की हालत भी आपने देखी है। इसलिए अब लोगों ने तकरीबन गुलाबगढ़ के अंदर फैसला कर लिया कि हमें क्या करना है। अब ये सिर्फ सिसकती हुई जान है, वो जब जान निकल रही होती है वो फड़क रही होती है। हमने इनको, ये मेरे साथी वहाँ पर गए थे, रब के फजल से दुड़ा के दिन रात दुड़ाया इतना कि अब वो हाँपते हैं और कभी वीडियो इधर चढ़ाते हैं कभी उधर। अब उनको वो भी होश नहीं रहता कि वीडियो कहाँ चढ़ाएं। पहले कहते थे आज हमारा ये आएगा, आज हमारा वो आएगा, सब आते जाते हमने देख लिए। मैंने कल वहाँ पर कहा, मैंने कहा जब जहाज़ उतरेंगे ऐसे फूंक मारो, वो कागज़ का जहाज़ जैसे उड़ाते उठ जाएंगे। तो इसी तरह से इन लोगों से घबराना नहीं चाहिए। ये लोग किसी नेक नीति से यहाँ पर नुमाइंदगी करने नहीं आते, ये सिर्फ सोचते हैं कि हम किस तरह से MLA बन जाएं। इनको गरीब का दर्द नहीं है, इनको गरीब की फ़िक्र नहीं है। हमें उस तरह से, हमें जो पिछले दौर में कमियाँ रह गई हैं, हमें उन कमियों को पूरा करना है। जो कोताहियाँ रह गई हैं, किसी साथी के साथ कोई कमज़ोरी रह गई है, इस दौर में हम उस कोताहियों और कमियों को पूरा करेंगे और इस तरह से एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी, मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी दोबारा हम लोगों को बताएंगे। जिस तरह गूगल कॉन्स्टिट्यूंसी, आज भी किसी भी जगह में चले जाओ तो गूगल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र होता है, आपका इज़्ज़त से नाम लिया जाता है। कोई मेरा मैंने हमेशा कहा कि मेरा साथी, मैं इसलिए इस तरह से काम करूँगा कि मेरा साथी एक बार जहाँ पर वोट मांगने गया, दूसरी बार वो सर झुका के वहाँ पर कभी नहीं गया, वो फ़ख्र से वहाँ पर गया। और हमने साथियों की हुई कमिटमेंट पूरी की। हमने उस कमिटमेंट को, आज भी किसी जगह पर आप जानते हो, जितना मेरा सीना नहीं चौड़ा होता उतने मेरे साथियों का सीना चौड़ा होता है। जब वो देखते हैं वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि लोग हमारे लीडर के बारे में इस तरह से बात करते हैं और इज़्ज़त से बात करते हैं। वरना ये सियासत बहुत ज़ालिम किस्म की चीज़ है, इधर कोई इज़्ज़त से नहीं पेश आता, और इलेक्शन में ख़ास तौर पर। लेकिन ये मेरे रब का फजल है कि जहाँ पर भी जाओ आप लोग इज़्ज़त, क्योंकि हमने रिश्वतखोरी नहीं की, हमने ठेकेदारी नहीं की, हमने बिजनेस नहीं किया, हमने माइनिंग के ठेके नहीं लिए, हमने रेलवे के ठेके नहीं लिए, हम बड़े बड़े ठेकेदार नहीं बने किसी चीज़ों के। हमने लोगों के काम किए, एक ही पेशा अपनाया और उसी को खुश असलूबी से निभाने की कोशिश की। उसमें जो कमज़ोरियाँ उसको दूर करेंगे। बाकी बहुत वक्त हो गया, आपको क्या करना है मेरे से बेहतर आप ज़्यादा जानते हो। आप 3 दिन रह गए हैं, लेकिन डोर टू डोर मेरी बहनों को कहूँगा, कोई वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए। कम से कम
اور ایک طرفہ ووٹ جانا چاہیے. انشاءاللہ تعالی میں یہاں پہ سے بتاتا ہوں آپ کو, جیت آپ لوگوں کی ہے, یہ پکا ہے جیت, آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اب وہ وقت گزر گیا, الیکشن لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. چاہے گلابی میرے ساتھ جو گئے تھے ان سے کہانیاں کبھی سننا, وہاں پر کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہماری کمپین, ہم نے مزے سے ہنستے کھیلتے دن رات کمپین کی اور کامیابی حاصل کی ہر جگہ پر. لوگوں نے ہمیں بہت پیار دیا, بہت محبت دیا, ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, آداب, جے ہند.